जय हिंद, नमस्कार। पिछले साल भारत में एक मेजर कंट्रोवर्सी या विवाद हुआ जब ज्ञानव्यापी इशू पर टीवी पे डिबेट करते हुए बीजेपी की नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन और काफी सारे पॉलिटिशियंस बुरी तरह से भड़क गए। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका डिजास्टर्स या विनाशकारी इंपैक्ट हुआ, काफी वायलेंट इंसिडेंट्स या हिंसा हुई और 3 बहुत ही भयानक मर्डर्स हुए। और जिसने भी नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को सही बोला था या रिपीट किया या दोहराया, उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लग गई। Gory images of the actual crime, showing how the attackers stalked and attacked and tried to behead Umesh Kole. Despite being grainy and shot in the dark, it captures the full throat-slitting horror. The 54-second-long CCTV clip captured from the camera of a nearby school building shows the 2 attackers actually attacking Umesh. As Umesh falls to his knees, they're seen slitting his throat. हालात इतने खराब हो गए कि नुपुर शर्मा को हाइडिंग में जाना पड़ा और आज तक नुपुर शर्मा एक नॉर्मल जिंदगी दोबारा नहीं शुरू कर पाई है। जो तादाद लगी है लाखों डेथ थ्रेट्स की, मैंने कम से कम 50,000 बारी ये पढ़ लिया है कल से, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मुझे तमाम माध्यमों से मैसेजेस आ रहे हैं। एक ने तो मेरी फोटो लगा के बगल में एक जला हुआ शव लगा दिया। कोई मेरे साथ और मेरे परिवारजनों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। कोई मेरे सरदन से जुदा और मेरे परिवारजनों का सरदन से जुदा करने की धमकी दे रहा है। कोई कह रहा है कि जान से मारेंगे और बाकायदा आप लगा लीजिए उर्दू में लिख के आ रहा है, उसको ट्रांसलेट कर करके बहुत ही चौंका देने वाली धमकियां आ रही हैं। और केवल भारत से नहीं आ रही है, मुझे पाकिस्तान से, दुबई से, लंदन से, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज से भी आ रही हैं। अब दूसरी तरफ है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले सनातन धर्म की तुलना या कंपैरिजन डेंगू या मलेरिया जैसे मच्छरों से किया। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். इनके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी लगे हाथ सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला। Udayanithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इनके बाद आए उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके के ए राजा, जिन्होंने सनातन धर्म को एचआईवी या एड्स और लेप्रेसी या कुष्ठ रोग से कंपेयर किया। ஆனா சனாதனங்கிறது அவமானப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதனால தான் சொன்னா அது ஹெச்ஐவி தான். சனாதனம் என்பது ஹெச்ஐவி. ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி இருந்து வெறும் நோயாளி மட்டும் பார்ப்போம், அவன் மேல வேற ஒரு அறிகுறி வரும்ல, இவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு. அந்த மாதிரி இந்த நோய் கொடூரமான நோய். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல, ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். अब इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी इन स्टेटमेंट्स के बाद कोई वायलेंस या हिंसा नहीं हुई और ना ही इनमें से किसी को भी कोई जान से मारने की धमकी दी गई, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है मारने की धमकी देने का या नारा लगाने का कि सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सर चाहिए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।
कि नुपुर शर्मा को फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। कंपैरिजन में नुपुर शर्मा को मारने की धमकियां मिली। इस्लामिक नेशंस ने उनकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोला, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया और काफी हंगामा मचा। उदयनिधि स्टालिन या प्रियंक खरगे या ए राजा की स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट कुछ लोगों ने बोला, मगर कोई इंटरनेशनल ड्रामा नहीं हुआ। वो सारे लिबरल्स और सेक्युलर्स कहां हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट को हेट स्पीच बोला था? तो इन लोगों की सनातन धर्म के बारे में स्टेटमेंट्स को हेट स्पीच क्यों नहीं बोला? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जनेऊधारी राहुल गांधी कहां हैं? अपने आप को प्राउडली हिंदू बोलने वाले उद्धव ठाकरे कहां हैं? सेक्युलरिज्म के बाकी ठेकेदार जैसे ममता बनर्जी जी, लालू प्रसाद यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, कहां हैं ये सब? वैसे सेक्युलर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, मगर सब गायब है। हमारे डबल स्टैंडर्ड्स की ये हालत है कि हमारे मीडिया और सेक्युलर लिबरल्स का एक सेक्शन इनकी स्टेटमेंट्स को ऑलमोस्ट जस्टिफाई तक कर रहा है, इसको एक एकेडमिक ट्विस्ट देकर। जब नुपुर शर्मा ने वो स्टेटमेंट दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप नुपुर शर्मा को गलत बोला और जितने भी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे उनके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बोला। और स्टालिन आज भी अपनी स्टेटमेंट्स को खुले आम डिफेंड कर रहे हैं। தான் நான் வந்து விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகள்லாம் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இல்லை ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போகிறாங்க. நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனமாக என்ன எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துலேயும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். நான் கரெக்டாக தான் சொன்னேன். நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், நான் சொன்னது கரெக்டாக தான் சொன்னேன். அதை வேணுனே அவங்க வந்து எப்பவுமே அது பாஜக ஒரு வேலை, அது ஃபேக் நியூஸை பரப்புறது. मेरा खून खून, आपका खून पानी। किसी को भी किसी भी रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर सनातन धर्म के बारे में इतना गलत बोलना फ्री स्पीच है तो नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट कैसे हेट स्पीच हो सकता है? भगवान ही जाने कि हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स और सेक्युलर्स की ये हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स कब खत्म होंगे। जय हिंद, नमस्कार।